let's say किसी को कैंसर है, he starts going for ozone. What are the benefits this cancer patient's gonna see? So chemo is like a poison, radiation is like a burning. तो ये देखता नहीं कि सिर्फ कैंसर है कि नॉर्मल सेल है, वो तो पूरे में चालू हो जाता है। जब हम ओजोन करते हैं तो आपके नॉर्मल जो सेल्स है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट का बूस्ट देते हैं। Chelation is one of the most powerful therapy to detox. Ozone उसका कितना परसेंट है? Ozone does not reduce the heavy metal toxicity, it improves your cellular circulation. तो एक्चुअली किलेशन के बाद अगर ओजोन करोगे तो बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि किलेशन ने जितने हैवी मेटल्स निकाल दिए उसके बाद ये ओजोन जाके उसको ऑक्सीजनेट करेगा, तो आपको रिवर्सल ऑफ द डिसीज़ फास्टर मिलेगा। किसी इंसान को डायबिटीज़ है, when they start with ozone तो they can tolerate carbohydrates better. विल इम्प्रूव, बट ये नहीं है कि आपको पासपोर्ट मिल गया खाने के लिए। ओजोन से शुगर बर्निंग और कार्ब्स बर्निंग जल्दी होता है, आपका नॉर्मली 40 to 45 पॉइंट्स कम हो जाएगा। आफ्टर कोरोना लोगों ने सप्लीमेंट्स खा लिए, सब कुछ कर लिया। हाउ कैन आई गेट बैक टू नॉर्मल? इट डिपेंड्स। वेलकम गाइज, वेलकम टू माई ड्यूटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मिलीशा। शी इज़ प्रेजिडेंट ऑफ ओजोन फोरम ऑफ इंडिया and she's also now the author of the book Ozone Therapy in India. So she's practicing ozone since 18 years. And ozone kya hai? Kisko chahiye? After COVID, you want to know about ozone if you really want to get your inflammations down and get back to where you started before Corona. So, welcome Dr. Milisha, welcome to My Duty Talks. Dr. Shah, so not many people have heard about ozone therapy. Tell us the history about you getting convinced, that turning point when you thought कि यार अब मैंने अपनी life ozone को देनी है, और आप ozone से पहले क्या कर रहे थे? Hi Palak. So ozone se pehle I was an active practitioner of homeopathy and psychotherapy. So I have a background in counseling, psychotherapy, homeopathy, which works by and large as a holistic treatment. There came one of my friend introduced me to ozone, and ozone's origin is also Germany, and like homeopathy is from Germany. So I got interested and attracted to it. It's like a marriage of two German treatments together, and that's how my work have been, getting recognized well. Yes. Everybody talks about our dear Dr. Milisha and her work. Thank you. Yes. So, can you tell people a little bit about what ozone therapy is? Who needs it? So ozone therapy is an oxygen-based treatment. We all know that oxygen is O2, whereas ozone is O3. So it's an extra energetic molecule of oxygen attached to O2. Once it is given inside your body, it will naturally make O2 and a nascent oxygen, which will immediately, combine with your plasmatic water and make a gradient of H2O2. And then it works as a chemical messenger. So it is like a complete natural gaseous medical gas treatment. You can take it for prevention, you can take it for treatment, you can take it from control. So we treat cough, cold to cancer. We treat somebody who wants to be fit and anti-aging, you can take it. We also give in cancer, pain management, tuberculosis. There are many usage of ozone, and ozone therapy. The first time in the world, ozone was used in First World War. So it is that old. So 1914 was the first usage of ozone in medicine, where it was used to treat mustard gas burns and infected wounds of the war. And since then, in Germany, in Russia, Cuba, in even Spain, Italy, everywhere it's been used as a alternative complementary treatment. So you can use it from prevention to treatment, all types. Anybody can do ozone? Anybody and everybody can do, from 6 months
to 90 year, and we've given as early as 1.5 month old child ozone therapy. But what was the issue with the child? So this child was a grandchild of my Maushi, and the child had a neonatal jaundice. So after like 10 days of the birth, some kids have jaundice because of as a natural, it is a process. Since Maushi knows about ozone so much, she's like, why can we give it? I said, yes, we should do it. 1.5 old months. Yes. So she did it for this child, just 10 sessions according to the way we calculate the dose. And today, this child, in 2.5 months, he's taking turns, which the neck holding is perfect, which takes usually 4 months for children to do. So, I mean, it is working quite well, and happy child. So we'll talk about benefits of ozone, because, and then I'll ask you, for example, one of the benefit I know is it boosts your natural antioxidants in the body. So there would be less reactive oxygen species, ROS load, which is equivalent to anti-aging. Yes. But अगर आप 1.5 महीने के बच्चे का एंटीऑक्सीडेंट लेवल बूस्ट करते हो तो बॉडी नेचुरल प्रोडक्शन को स्लो डाउन तो नहीं करती है? नहीं. So ozone's work, like once you, as we say, it makes O2 and O, that works as a chemical messenger, and it kind of synthesizes your own intracellular antioxidant defense mechanism. So you're not giving something from outside, you're just making or compelling your body to make naturally good antioxidants. So there is nothing like I'm supplementing or I'm giving something. I'm just pushing your body to work naturally, so it does not affect your natural capacity. On top of it, because of jaundice, the child's bone marrow will be functioning a little slower. So when you give ozone, you are improving your erythropoietic levels also. So it's like a very holistic approach where you will not be compromising your natural boosting. On top of it, you will improving your natural boosting capacity. You know, when you told me this story, we did it 10 times to 1.5-year-old, 1.5 months old. You know, I cannot just see a needle going to the... No. It was a rectal insufflation. Okay. So there was no needle. Okay. It's like a small controlled, measured enema. Okay. That is okay. So we have have injection or something. Yeah, we have like 20 different applications of ozone. So we have external, non-invasive and invasive applications. So of course, child up to 10 years of age, no children is given IV. We give only rectal insufflation. So it's like an ozone oxygen mixed, rectal enema. It's not like enema for you to feel ki you have to go to the washroom or the toilet immediately. It is like a retention enema, which you usually give around 200 to 300 ml for adults, and that for that child will be 10 ml. Okay. So no IV, no injections, please. No. So how many treatments a person, let's talk about just anti-aging, then we talk about disease. Yeah. Just for the purpose, for example, if I have to take ozone, Yeah. how will you decide for me rectal or IV? Okay. So अगर anti-aging की बात है तो aging क्यों होता है तो mainly gut is responsible for your aging because what you absorb. Okay, so what usually जो saying है कि what you eat, digest, absorb, okay, metabolize, but दो चीज़ हम भूल जाते हैं, detox and oxygenate. तो जो हम ओजोन करते हैं तो वो हम डिटॉक्स भी करते हैं उससे और ऑक्सीजनेट भी करते हैं. तो एंटी एजिंग के लिए बेस्ट ओजोन का एनिमा है क्योंकि उससे आपका गट ठीक होता है, आपका लिवर ठीक होता है और आपका सर्कुलेशन भी बढ़ता है. मतलब जब आप रेक्टल में एनिमा करते हो, it affects your liver. So if somebody improves has your liver. So So if somebody has fatty liver, it will benefit them yes, too. definitely. And if somebody has acidity issue, bloating issue, digestion issue. Yeah, so जो हम बोलते हैं IBS है, किसी को gut dysbiosis है, किसी को bloating issue जो है, तो उसमें या तो good bacteria कम है और bad bacteria ज़्यादा है,
उसमें भी ओजोन बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपके जितने भी गट के इशू है, ओजोन के रेक्टल से बहुत उसमें बेनिफिट होता है। और रेक्टल इज़ नथिंग, इज़ जस्ट 200-300 ml ऑफ ऑक्सीजन ओजोन गैस गिवन पर रेक्टम। सो अगर पर रेक्टम समझाया जाए तो एनीमा, जिसने बहुत लोगों को पता होता है, काफ़ी लोग कॉफ़ी एनीमा लेते हैं, काफ़ी लोग नॉर्मल वाटर एनीमा लेते हैं, या फिर हाइड्रोकोलोन जो बहुत अभी प्रचलित हो रहा है। तो इतने सारे डिटेल्स में नहीं जाके एक सिंपल ओजोन का एनीमा लिया जो हम एवरी डे ले सकते हैं, तो काफ़ी लिवर में। कितना टाइम लगता है रेक्टल ओजोन लेने में? 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। इट्स लाइक अगर आप रेक्टल से गैस अंदर डालोगे तो इंसान पूरा दिन फार्टिंग तो नहीं करेगा? नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और ओजोन तुरंत 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो ओजोन को तो 5 सेकंड नहीं लगते एब्जॉर्ब होने में, बिकॉज इट इमीडिएटली आपके जो रेक्टम में पानी है उसमें वो घुल जाएगा। ऑक्सीजन को 7 से 15 मिनट लगते हैं एब्जॉर्ब होने में। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा अपना गट क्लेंजिंग या थोड़े ये लीजिए, या फिर भी लिया तो कोई फाट नहीं करता है। नो। ओके। पोस्ट कोरोना केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ओजोन जिनको चाहिए आपके पास? सो पोस्ट कोरोना तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है पलक। बेसिकली पोस्ट कोरोना हमारे पास बहुत सारे एलर्जी के पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशन के पेशेंट्स आते हैं। ये एग्रीवेट हो गए हैं। हाँ जी। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स बढ़ गए हैं, और मेनली कैंसर पेशेंट्स हु हैव लिवर एंड लंग कैंसर। सो हम उसको टर्बो कैंसर बोलते हैं, कि वो इंड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, या फिर उनके अंदर डॉर्मेंट सेल्स थे वो एग्रीवेट हो गए। सो पोस्ट कोरोना द बेसिक इज़ वायरल लोड, जो कहीं ना कहीं बॉडी में छुपा हुआ है। हम ओजोन से, बिकॉज ओजोन की बहुत बड़ा रिजल्ट है जर्मिसिडल, यानी कोई भी इन्फेक्शन को कम करना। तो पोस्ट कोरोना ओजोन काफ़ी हद तक यूज़फुल हो रहा है। लॉन्ग कोविड के जो पेशेंट्स आते हैं, जिनको कभी कोविड के बाद या वैक्सीनेशन के बाद ठीक ही नहीं लग रहा है, तो उसमें भी हम काफ़ी ओजोन करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट को क्या चाहिए। इट इज़ कम्प्लीटली टेलर मेड फॉर पेशेंट। तो ऐसे नहीं कि आपको सेम है या किसी और को सेम है, सबके लिए अलग अलग डोसेज होते हैं, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, एंड इट इज़ नॉट कि समथिंग घर पे करेंगे, यू विल हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड डू इट। ओके, लेट्स से किसी को कैंसर है, और कैंसर में क्या होता है कि कीमोथेरेपीज के बाद इंसान बस फिर डाउनफॉल ही है। हाँ जी, राइट। वो कीमोथेरेपी के साथ साथ ही स्टार्ट्स गोइंग फॉर ओजोन। व्हाट आर द बेनिफिट्स दिस कैंसर पेशेंट्स गोना सी? Very good. I mean, I've been working in the field of integrated oncology since 2007. 2007 में I used to work with an oncoradiologist where he knew ozone therapy works well from USA. And he was an integrated doctor. So he called me to his center. It is Lady Ratan Tata, it's in Mumbai. वहाँ पे हम पहले 83 पेशेंट्स पे जो रेडिएशन ले रहे थे उन पे चालू किया। नाउ यूजुअली हम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं वो रेडिएशन है और कीमो है, तो क्या है, बर्न करते हैं या फिर पॉइजन करते हैं। सो कीमो इज़ लाइक अ पॉइजन, रेडिएशन इज़ लाइक अ बर्निंग। तो ये देखता नहीं कि सिर्फ कैंसर है कि नॉर्मल सेल है, वो तो पूरे में चालू हो जाता है। राइट। जब हम ओजोन करते हैं तो आपके नॉर्मल जो सेल्स है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट का बूस्ट देते हैं। तो जो ये पॉइजनिंग और बर्निंग चालू है, आपके नॉर्मल सेल उसको फाइट अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी कीमो रेडिएशन ले रहे हैं, सो ओजोन विल इम्प्रूव योर इंट्रासेल्युलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति नॉर्मली बढ़ानी है, जो
नहीं बढ़ रही है बिकॉज ऑफ कीमो एंड रेडिएशन, हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम वो 83 पेशेंट्स का जो रिजल्ट था, इसमें जितने पेशेंट्स थे उसमें कोई भी रेडिएशन का साइड इफेक्ट नहीं आया। वाह, उनके बाल नहीं गए? रेडिएशन में बाल नहीं जाते, लाइक स्किन इन्फ्लेम हो जाती है, कीमो में बाल जाते हैं। ओके ओके। सो रेडिएशन में अल्सर्स हो जाते हैं, राइट। डार्क स्किन हो जाती है, अलग अलग प्रकार के उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये सब लोगों के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए, यानी आई वुड से कि 70% लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए, 30 में एकदम माइन्यूट आए। फिर भी उनके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मच बेटर हुई। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एनर्जी लेवल्स बूस्ट हो जाते हैं। हाँ जी। बिकॉज आई टोल्ड यू व्हेन आई हैड माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओजोन एंड मुझे नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट किया गया, बट आई हैव वेरी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल बिकॉज वट एवर वेजिटेबल्स एंड सप्लीमेंट्स, एंड मैं पूरी रात आई वॉज लुकिंग एट द सीलिंग एंड माई एनर्जी लेवल्स, मुझे लगा अब क्रैश होगा, यू नो, यू हैवंट स्लेप्ट फॉर वन नाइट एंड आई डिडंट क्रैश नेक्स्ट डे। एंड यू वर नॉट फीलिंग वीक और नॉट फीलिंग स्लीपी? नो, आई वॉज जस्ट लाइक दैट। मतलब मेरी पूरी, क्योंकि थोड़ा सा ना केस सिर्फ वेट पे नहीं जाना चाहिए, आई थिंक केस बाय केस पे भी, बट कोई कैसे टेस्ट करे कि हाँ यार इसके एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल अच्छे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है पलक कि हमारे 3 टाइप के डोसेज रहते हैं। एक है इम्यून मॉड्यूलेटरी, जिससे आपको इम्यून बूस्ट मिलता है। दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बूस्ट मिलता है। और तीसरा है जर्मिसिडल, जिसमें इन्फेक्शन कम होता है। तो डेफिनेटली केस के हिसाब से ही डोसेज बनते हैं। तो यू नो हम इम्यून मॉड्यूलेशन के तरफ ज़्यादा जा सकते हैं उसमें। या मेरा केस ये था कि आई वांटेड टू ट्राई। हम लोग सो गुड ट्राई। या आई कुड वर्क, अगर मैं ऐसे ही ओजोन करती रही और मेरे को नींद नहीं आई, आई कुड वर्क 2 times, जस्ट इमेजिन, दिन रात इफेक्टिव, यू नो। या ओजोन के बारे में मैं तब सीरियस हुई थी, मेरे मॉम के एक रिलेटिव हैं, सो उनको क्या हुआ कोरोना के बाद, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, कोरोना की इंजरी, वैक्सीन इंजरी के बाद। सो देन हमने उनको ओजोन लगवाई 1 2 3। आई वुडंट से कि सिर्फ, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि उन्होंने मेरी 10 बातों में से सिर्फ एक बात मानी, यू नो, सिर्फ ओजोन माना। या ही वॉज फीलिंग मोर एनर्जेटिक, इसीलिए वो दूसरे सेशन के लिए आए, क्योंकि उनको आना पड़ता था नवा शहर से जलंधर, तो इतने घंटे उनको ट्रैवल करके आना है। बट उनको समझ में आया दिस थिंग इज़ गिविंग मी एनर्जी। सो डू यू थिंक दैट अगर किसी को कोई बीमारी है, ओजोन अलोन इज़ इनफ? इट डिपेंड्स। ओके, अगर किसी को से कोई भी बीमारी हो तो हम लोग फुल डिटेल्ड ऑफ केस स्टडी में जाते हैं, जो कमी है। सो लाइक आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ लर्निंग न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो। सो जो डेफिशिएंसी है उसको तो आपको कवर करना ही है। पर इवन आफ्टर डेफिशिएंसी के बाद पेशेंट इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तब डेफिनेटली ओजोन तो करना है, क्योंकि आपको नेचुरली वो बूस्ट मिलता है। तो अगर यू नो, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो कि ओजोन के 6 मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा तो आपका ऑक्सीजन डिलीवरी टू द सेल बढ़ जाता है, उससे एनर्जी बढ़ती है, मोर ATPs बनते हैं। सो ATP, जैसे हम बोलते हैं ना पैसा चाहिए खर्चने को, वैसे हमको ATP चाहिए सेल को काम करने के लिए। एनर्जी करेंसी। या इट इज़ योर एनर्जी करेंसी। सो ATP बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा, सर्कुलेशन तो बढ़ गया, इम्यून मॉड्यूलेशन होता है। तो आपके सेल्यूलर और ह्यूमरल 2 टाइप की जो इम्यूनिटी है दोनों बढ़ जाती है, तो यू कैन बी मोर इन कंट्रोल। फिर प्लेटलेट्स के वजह से हीलिंग जल्दी होता है, तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका कोई भी स्किन एलर्जीज़ है, स्किन कंडीशंस है, तो वो कम्प्लीटली इम्प्रूव होता है। उसके बाद हार्मोन बैलेंस होता है। Really? Yeah. So, you know, it's like a holistic. By doing something so simple, you can get like more than 6 to 7, you know, but improvement. It's very, जब तक आपने antioxidant बोला था, okay, I could understand the science. हाँ. And
एन एक्स्ट्रा, एंड जब तक आपने ATP एनर्जी बोला था, हाँ. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. जो हार्मोन्स आजकल इम्बैलेंस हो रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ ओवरलोड ऑफ एस्ट्रोजन, एंड देन प्रेग्नोलॉन इज not getting converted into progesterone because of stress level. Can you explain me how ozone will help in hormone balancing? So hormone imbalance are, you will epigenetic is one of the, environmental toxin is another thing. You will say the faulty eating habits. Okay, so these are, if I'll just, let's take these three. What we do is, according to their requirement, we are detoxifying them. At the same time oxygenating them. So इनकी जो Krebs cycles है, इनकी जो conversions है, conversion to energy वो बढ़ जाता है और naturally hormone balance होता है. तो I'm not giving you, it is like a catalyst. It's just changing the environment inside your body to improve. Does it affect at the genes level? It can be affecting genetic तक तो नहीं जाऊंगी मैं, but it is working on a cellular level. At a cellular level. At cellular level. जहाँ आप detox की बात करते हो, how is it like chelation is very powerful. Yes. The only problem with chelation is why I haven't done it कि आपको 1 हफ्ते तक का commitment करना पड़ता है. 10 सेशन मिनिमम होते हैं उसके. तो 10 दिन का commitment करना पड़ेगा, right? और ओजोन एंड देन 3 घंटे. आपकी केस में आप लोगों ने एक ड्रिप लगाई, पानी वाली ड्रिप लगाई, ओजोन वाली, एंड देन वो ड्रिप 20 मिनट. सो सलाइन वाली ड्रिप, सलाइन वाली, या सॉरी पानी वाली काट देना. सो सलाइन वाली ड्रिप लगाई एंड मेरे ख्याल से 30 मिनट्स लगते हैं. सो हमारे एप्लीकेशंस बहुत वेरीड है. सो 20 डिफरेंट एप्लीकेशंस. रेक्टल को 5 मिनट लगते हैं, राइट. ओजोन सलाइन को 30 to 40 मिनट्स लगते हैं. माइनर ऑटो जो इम्यूनिटी बढ़ाता है उसको भी 5 मिनट लगते हैं. मेजर ऑटो जो आपका सर्कुलेशन बढ़ाता है उसमें अराउंड 30 to 40 मिनट्स. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स कन्वीनियंस, टाइम. रेक्टल है तो आपको 20 लेना है, मेजर ऑटो 10 में भी हो जाएगा, सलाइन 10 में भी हो जाएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप डायरेक्ट IV में दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा फास्टर एडवांटेज है, बट रेक्टल से जो बेनिफिट मिलता है, आई कैन से यू रियली फील गुड आफ्टर इट. 30 वो 7 मिनट्स वाला. या 7 मिनट्स. अमेजिंग. बिकॉज मेरा ना आयरन लेवल हमेशा लोअर साइड पे रहता है. सो हमेशा आई एम ऑलवेज ऑन सप्लीमेंट. I don't know if this is the genetic defect. My mom had it, my nani had it, and now I have it. My iron is always on the lower side. So that means it is not absorbing from your... Yeah, it's not getting absorbing. So I'll tell you a simple test. Just check your CBC. In your CBC, there is a marker called RDW, that is red cell distribution width. Okay. It is a soft marker for iron deficiency. Okay, आपका तो पता ही है आपको, means आपका RBC is not utilizing the heme properly. Yeah. Okay, हम जब ओजोन देते हैं तो हम ये RDW को we see it reversing, we see it going back to its normal. Means आपका absorption of the food इम्प्रूव हो जाता है. मैं इसीलिए इस पॉइंट पे आ रही थी. सो बहुत साल हो गए मुझे रिसर्च करते हुए, बिकॉज सो रेक्टल इज द चॉइस फॉर यू. एग्जैक्टली. सो मेरे को देन आई गॉट दिस आंसर. मैं दुबई में नहीं करवाऊंगी ओजोन. द रीज़न इज इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन दुबई. सो एंड आई नो ओजोन इज लाइक इन इंडिया कॉस्ट इफेक्टिव. कितने का होता है एक सेशन? हर एक डॉक्टर अपने हिसाब से But range round about. So 500 to 2000 तक. Yeah, because city के हिसाब से हर चीज़ बदल जाती है ना. हाँ. Okay. 500 से 2000 तक applications varies. According to application the cost varies. क्योंकि सब material सब कुछ use करना होता है, तो it all depends कि क्या होता है. पर डेफिनेटली आपको 10 से 15 सेशन में यू विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस एंड यू विल बी मोर. एंड देन इसके रिजल्ट ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद तुरंत कम नहीं होते. ये आपको 6 से 8 महीना चलते हैं.
तो आप हर 6 महीने में 10 सेशन ओजोन के करोगे, यू विल बी एट योर पीक ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल्सो हैविंग ऑल द 6 बेनिफिट्स ऑफ ओजोन. अगर मुझे एंटी एजिंग के लिए करना है तो 6 सेशंस में 3 रेक्टल और 3 नो सो 10 सेशंस हम गिनेंगे. तो 10 रेक्टल जो आपको करनी है, उसके साथ आप ईयर ले सकते हो. दैट काम्स योर माइंड. You can do breathing ozone through oil, which improves your lung function. Yeah, I figured out a machine. I think it's in Sweden. So it's doing ozone with H2, with hydrogen. And आप लोग उसको घर पे ला सकते हो. मैंने एक टेस्ट सैम्पल मंगवाया है. आई थिंक इट वाज स्वीडन. तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. इट्स लाइक अराउंड 1500 euros. मतलब 1.25 लाख रुपए की मशीन है. बट एवरी टाइम आई कीप ट्राइंग थिंग्स कि उसके बाद इंडिया में मैं किसी को कह सकती हूँ इसको रेप्लिकेट करो. आपको लगता है कि ऐसे हम लोग अपना खुद से रेक्टल करेंगे या इनहेलेशन करेंगे या कान में खुद, आपको लगता है अच्छा आइडिया है? खुद से करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज यू नीड टू नो द डोसेज. वो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी ना. ट्रू, बट सब पेशेंट्स नहीं कर सकते मुझे व्हाट्सएप, राइट? नहीं, मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को ईजी कैसे बनाऊँ. हाँ, तो ईजी बनाना है तो आप है ना ओजोन वाटर मशीन लीजिए और रोज यू कैन ड्रिंक ओजोनेटेड वाटर. ये जो अभी डॉक्टर आलोक ने बोला है वो अपनी वेजिटेबल्स ओजोनेटेड, तो वो डेफिनेटली दैट विल बी गुड कि आप फिर चलो ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है एटलीस्ट पेस्टिसाइड निकाल के आप खा रहे हो. तो वेजिटेबल क्लेंजिंग के लिए तो ओजोन चलता ही है. वेजिटेबल्स को जब ओजोनेटेड वाटर में साफ करते हैं फिर क्या होता है? सो जो भी आप पेस्टिसाइड्स जो स्किन पे है वेजिटेबल के या फ्रूट के स्किन पे है, उसको वो ओजोन डिटॉक्स कर देता है, निकाल देता है. फिर आपको उसको अच्छे पानी से और धोना है और आपको कंज्यूम करना है. तो एटलीस्ट आपके बॉडी में एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स नहीं जा रहे. ओके, तो डायरेक्ट इनहेलेशन से आई वुड से ओजोन वाटर घर पे यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल है. Chelation is one of the most powerful therapy to detox. Ozone उसका कितना % है? Let's say if chelation is at 10, where does ozone lies? So I would say ozone में directly detox के लिए like chelation is heavy metal toxicity. Ozone does not reduce the heavy metal toxicity. It improves your cellular circulation. तो वो आपका RBC को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है. तो एक्चुअली किलेशन के बाद अगर ओजोन करोगे तो बेनिफिट्स बहुत मिलेंगे, क्योंकि किलेशन ने जितने हैवी मेटल्स निकाल दिए उसके बाद ये ओजोन जाके उसको ऑक्सीजनेट करेगा, तो आपको रिवर्सल ऑफ द डिसीज़ फास्टर मिलेगा. किसी इंसान को डायबिटीज़ है तो ऐसा भी होता है व्हेन दे स्टार्ट विद ओजोन तो दे कैन टॉलरेट कार्बोहाइड्रेट्स बेटर, कुछ ऐसा होता है? हाँ, बिकॉज इंडिया इज अ डायबिटीज. हाँ, पर ये थोड़ा ट्रिकी भी है. ओजोन से एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं AGE वो कम होते हैं. ओजोन से ग्लाइकोलाइसिस यानी शुगर बर्निंग, फैट शुगर बर्निंग और कार्ब्स बर्निंग जल्दी होता है. अगर मैं आपका शुगर लेवल्स ओजोन के पहले चेक करूँ, लाइक मेजर ऑटो के पहले और मेजर ऑटो के बाद चेक करूँ, आपका नॉर्मली 40 to 45 पॉइंट्स कम हो जाएगा. ओके, सो इट विल इम्प्रूव, पर ये नहीं है कि आपको पासपोर्ट मिल गया खाने के लिए. श्योर तो मुझे वो रॉन्ग मैसेज नहीं डालना है. पर हाँ, आपका HbA1c कम हो जाता है, आपका जो एंड AGE के वजह से जो आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत कम हो जाता है. तो आपको न्यूराइटिस नहीं होगा, आपको किडनी डिसीज़ जो CRF होता है डायबिटीज़ के बाद वो नहीं होगा, आँखों में जो धुंधलाहट आती है वो भी कम हो जाती है. तो वो सब बेनिफिट्स है. डायबिटिक फुट को हील करने में ओजोन का सबसे बड़ा हाथ है. और अगर आप रिसर्च पेपर्स देखें उस पर तो डायरेक्ट वो इंजेक्शन भी लगाते हैं. हाँ जी, हम बैगिंग करते हैं, हम इंजेक्शंस लगाते हैं, हम रेक्टल करते हैं या फिर सलाइन या जो भी इंडिकेटेड है वो करते हैं. और डायबिटिक फुट काफ़ी हद तक
कंट्रोल में आ जाता है, जल्दी आ जाता है. तो जो लोग जिनको अल्सर्स है, नॉन हीलिंग अल्सर्स है, जो हील ही नहीं होते, परेशान रहते पूरे, आई थिंक 1 से 2 साल लगते हैं उनके वुंड्स को हील होने में. वो हम 2 से 3 महीने में कर देते. नहीं, वी हैव एन एग्जाम्पल. हमारे पास एक केस आया था. सो ही हैड दिस डायबिटिक फुट एंड उनको फिर हमने ओजोन के सेंटर में भेजा. वो जो आप बैगिंग बोल रहे थे, सो बेसिकली एक प्लास्टिक के लिफाफे के अंदर पैर डाल देते हैं. हाँ जी. एंड लेकिन डॉक्टर ने वहाँ पे उस एरिया पे भी ओजोन के छोटे छोटे इंसुलिन. सो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो इंसुलिन टाइप होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वहाँ का जो लोकल सर्कुलेशन है वो बढ़ाते हैं. सो लोकल सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो कुछ भी चीज़ हीलिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और हम वो अंदर डाल के वी आर इम्प्रूविंग. सो दैट वे इट वर्क्स फास्टर. ओके, आप ओजोन के फेस पे इंजेक्शंस भी लगाते हो? बिकॉज अगर और सर पे, व्हाट आई एम थिंकिंग इज डायबिटिक फुट हुआ, सर्कुलेशन नहीं है क्योंकि वो हार्ट से दूर है, और ये चीज़ भी हार्ट से दूर है. तो अगर हेयर फॉल जो है उसके लिए हम समथिंग कॉल्ड स्कैल्प बैगिंग करते हैं. तो इट्स लाइक वी वेट योर स्कैल्प, वी पुट द शावर कैप काइंड ऑफ अ थिंग, एंड वी पुट ओजोन ट्यूब, लाइक जैसे पैर में किया वैसे स्कैल्प पे किया. तो आइडिया है कि स्कैल्प का सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, जिससे आपका हेयर फॉलिकल रिपेयर होगा और आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा. ओके. दूसरा आप पूछ रहे थे एंटी एजिंग के लिए. तो इवन द कोलेजन डिप्लीशन जो आपके स्किन में होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्कुलेशन डिप्लीट हो रहा है. If we are giving ozone injections, we do one very well, it will improve your microcirculation. So naturally आपका चेहरा ग्लो करेगा. ओके. पर सिस्टमिक यानी जो रेक्टल है, मेजर ऑटो या सलाइन है, वो तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अंदर से हील होगे उतना बाहर से खूबसूरत दिखोगे आप. Yeah, I always say I'm launching a skincare, but we have a serum. It is called EpiShield to protect from sun rays. We have antioxidants. But I always tell people कि चाहे मेरा skincare आ जाए, but I will always say at least take astaxanthin or something for the internal. Definitely. It's your internal sunscreen, and आपको सिर्फ face को क्यों बचाना है sunscreen लगा के, protect your whole body. So can you discuss some complicated case or success studies of ozone which you are remarkable through your career? There are many, but I would share one case of the colon cancer. Okay, so this gentleman was taking chemotherapy. In 3 chemo, he was like completely devastated. He would require 2 people to bring him to our clinic. We started him with ozone, and after his 6th session, I see him sitting in my waiting area alone. So I'm like, today what happened? I just went out to see something, and then I said, why are you alone today? He's saying, I came from my home alone. He was so proud of it. I said, what happened? He's saying, no, I was weak, so people were getting me. Now I'm feeling okay. So I came on my own. And that is, so giving it the life back to the patient, that was very good. So this gentleman, of course, took 20-21 cycles of rectal, then major ortho, and he became completely, his PET scan came normal. अच्छा, ऐसा हो जाता है ओजोन से पहले कुछ केसेस में, कुछ केसेस में कैंसर भी. हाँ, सो हम बहुत सारा उनको डाइट एडवाइस करते हैं. सो डाइट में इतना ही कि शुगर कम कर दो, बिकॉज दे फीड कैंसर. हाँ जी. ग्लूकोज यानी कार्ब्स कम करके प्रोटीन बढ़ाते हैं. मोर ऑफ वेजीज and lots of the chlorophyll diet बोलती हूँ. Veggies is a big thing because I go to the buffet. I am staying here and पूरा buffet के अंदर 10,000 items हैं, veggies ही नहीं है. और अगर veggies डाल रहे हैं, and this is also a big problem in Dubai. Dubai is also, I think, like America, obese. Kids are obese. एंड आप कहीं भी जाओ, प्लीज़ मुझे थोड़े से सॉटे वेजीज ला दो. इट्स सच अ बिग चैलेंज. पीपल आर जस्ट नॉट इनटू वेजीज.
डोनट्स वगैरह? Processed carbs is complete no-no. कंप्लीट नो नो. एक कैंसर के पेशेंट का आपने बताया, और 2 So, एग्जांपल्स दीजिए. I would say, there was this rheumatoid arthritis, like an autoimmune condition, जहाँ पे आपको बहुत ही severe pains in your, fingers, joints. So this girl was studying engineering, and and then she could not finish her exams. तो बहुत पेन रहता था उसको. ओजोन हमने चालू किया तो उसको रेक्टल और माइनर ऑटो, ये 2 चीज़ें दी गई. रेक्टल टू इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड माइनर ऑटो टू रिड्यूस द ऑटो इम्यून कंडीशन. उसके 10th और 12th सेशन के बाद उसकी एक मॉक टेस्ट थी. उसके बाद वो आई तो इतनी खुश थी, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती आज मैंने पेपर कंप्लीट किया. So the spark in her eye made me smile. I'm like, I said, oh, I'm feeling good about this. तो ये तो हो गया ऑटो इम्यून. इट वर्क्स वेरी वेल इन पेन मैनेजमेंट. सो जिनको नी जॉइंट पेन है, बैक एक है, कोई भी जॉइंट लाइक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, ट्रेपेजाइटिस, सर्वाइकल पेन. आजकल बिकॉज ऑफ मोबाइल तो सबको पेन है. तो हम ओजोन के माइन्यूट सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस करके वो पेन को सबसाइड करते हैं. उसके साथ B12, D3, आपका ADK बहुत अच्छा करता है काम. तो ये सब साथ में मिला के वी गिव देम, and they really improve. The pain management is has become very easy with ozone and nutrition balancing. वैसे तो बहुत सारे लाइक नॉन हीलिंग अल्सर्स तो आप हमारे कितने सारे रिसर्च पेपर्स इस पे पबमेड इंडेक्स जर्नल पे है, तो आप वो भी देख सकते हैं. One of the example I would like to say, normal sinus, cold, पर लोग बहुत परेशान रहते हैं उससे. So मेरे पास एक टीचर आई थी जो हमेशा छींकती रहती थी. Okay, and she was like, do something about this. I am just not being able to pay attention in my work. She was allergic to dust, definitely. ओके तो इनको हमने बहुत सिंपल सी ट्रीटमेंट लाइक ईयर इंसफलेशन और ब्रीदिंग ओजोन थ्रू ऑयल, ये 2 दिया. उसका मेरे पास पहले वाला मैक्सिलोफेशियल का उसका एक्सरे था जो पूरा उसका साइनस भरा पड़ा था. ओके, इसका 10 सेशन के बाद छींकें बंद हो गई, एलर्जीज कम हो गई. उसका पूरा हमने वापस साइनस एक्सरे निकाला तो completely क्लीन, एंड शी वॉज सो हैप्पी विथ इट. सो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, आई थिंक आप जो भी ओजोन प्रैक्टिशनर्स से पूछोगे वो काफ़ी हद तक आपको बोलेंगे. देन उनका ख़त्म हुआ, उनको अगले साल फिर आना पड़ा. सो लकीली 6 से 7 महीने के बाद वो वापस आई थी, और उसके बाद आई थिंक देयर वाज अ शिफ्ट इन द स्कूल दैट दे वेंट इनटू द वाइट बोर्ड. ओके, तो उसके बाद वो नहीं आई हैं. पर अगर किसी का 2 से 3 साल भी कुछ अच्छा चल रहा है, I find that is a very good investment on time to, and it just takes like 10-15 minutes. So अगर आपको 10 सेशन लेना है, आपको थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल के आना है, तो it's quite see, I don't lot of dreaded diseases like MDR TB, कैंसर तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है. सो MDR TB में इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, तो जहाँ पे कोई दवाई काम नहीं कर रही. ओके, ये केसेस में ओजोन हैज़ शोन वेरी गुड रिजल्ट्स. सो क्योंकि जहाँ पे ड्रग नहीं काम कर रहा है, ओजोन नेचुरल है, वो तो जाएगा ही और काम करेगा ही. धीरे धीरे लाइक 3 महीना उनको कंटिन्यूस लेना पड़ता है ओजोन, पर उनका इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक बेटर हो जाता है. तो हम बोल रहे हैं आप ट्रीटमेंट चालू रखो आपका, साथ में ओजोन करो. सो वी वर्क इट एज अ सपोर्टिव कॉम्प्लीमेंट्री एडजुवेंट इंटीग्रेटेड थेरेपी. तो आप बोल सकते हो बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, पर दे वर्क वेरी वेल. I know. I have seen the practical. मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर किसी की लो एनर्जी है, like I said, ozone just didn't make me sleep, and I crashed next day. No, I didn't want sleep.
फॉर वन नाइट. सो ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने जब डॉक्टर से बात करी, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए था. वी जस्ट कंसिडर्ड यू एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. एंड तब एक और चीज़ थी, मैं उस टाइम पे जर्मनी में रहती थी, तो अभी शायद मेरे को ओजोन करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो जर्मनी में आई वॉज लिविंग इन दिस क्लीन एनवायरनमेंट, हैविंग ऑर्गेनिक फूड, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच. तो गाइस किसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला कि वो जगने वाले हैं. मेरा लाइफस्टाइल जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एकदम holistic, like nature connect. So anyways, so Dr. Millie, can you explain us what is ozone and कितना टाइम लगता है ओजोन करने में एंड कैसे करते हैं? Okay, so ozone is an oxygen and O3 combination. So when we give ozone therapy, it's a gas state. गैस, मेडिकल गैस बोलते हैं इसको. ये प्योर ऑक्सीजन से बनता है. ओजोन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन पेशेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. उसके अराउंड 20 डिफरेंट एप्लीकेशंस है, यानी एक्सटर्नल, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव. कॉफ कोल्ड टू कैंसर तक दे सकते हैं. तो किसी को सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून है, हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म, यानी आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये कॉमन चीज़ हो गई है. तो इनमें भी मेटाबॉलिज्म लो होता है, तो हम ओजोन से उसको बढ़ाते हैं. तो ओजोन बेसिकली एक जनरेटर है? नहीं. सो हम ऑक्सीजन टैंक है. ओके. जहाँ से इनपुट जाता है एक मशीन में, जिसको हम ओजोनेटर बोलते हैं. तो वो ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन के 0.5 to 5% को ओजोन बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन ही है. तो अगर आप जर्मनी में देखें तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन हीलिंग मोडालिटी. अगर आप क्यूबा में देखें तो वो ऑक्सीजन ओजोन थेरेपी बोला जाता है. इन इंडिया वी हैव डेलिबरेटली केप्ट इट ओजोन बिकॉज वो काम करता है. ऑक्सीजन नहीं, अंदर जाके ओजोन केमिकल मैसेंजर्स बना के काम करता है. तो ये काफ़ी हद तक नेचुरल गैशियस ट्रीटमेंट है. वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और हम बोल सकते हैं ये 10 times मोर सल्यूबल देन ऑक्सीजन. तो ये तुरंत एब्जॉर्ब होके काम करता है. तो ऐसे नहीं है कि वो मैंने गैस लिया तो मेरे से गैस निकलेगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है. इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है. सो ये आपको 10 से 20 सेशन करने होते हैं. इट इज़ एन एडजुवेंट थेरेपी. हम लोग जो भी कर रहे हैं उसके साथ मिलाओ तो वो फास्ट रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देता है. किसी को नहीं कुछ करना है और सिर्फ ओजोन लेना है तो वो भी डॉक्टर के हिसाब से फॉलो करके ले सकता है. बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि ओजोन इज़ टॉक्सिक एंड जो पोल्यूशन में के साथ मिलके दैट मेक्स स्मॉग, एंड ऊपर जो ओजोन की एनवायरमेंटल लेयर है वो ओजोन, इस ओजोन से हाउ इज़ इट डिफरेंट? So that's a wonderful way to let others know. God ने, by nature's gift, we have ozone layer in the atmosphere which filters the harmful ultraviolet rays of the sun. अगर वो ओजोन लेयर नहीं होता तो हम सबको स्किन कैंसर होना था. तो ओजोन अगर नेचर ने यूज़ किया है naturally to protect us, we should use such a wonderful treatment for ourselves. Coming to pollution and ozone. Now, हमने अपना वर्ल्ड इतना मॉडर्न बना लिया है कि CFC हर जगह से, हर रेफ्रिजरेटर से निकल रहा है या हर AC से हो रहा है. सो ये CFC और कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द व्हीकुलर एग्जॉस्ट इज़ polluting our atmosphere. Ozone tries to nullify. वो नीचे आता है कि अरे यहाँ पे बहुत सारा pollution है, इसको nullify करना है. तो वो ओजोन लेयर से वो नीचे आता है उसको nullify करने में. हमने क्या किया, ये easy है measure करने के लिए, तो बोल देते हैं कि अरे इतना सारा ओजोन है, बाहर मत जाओ. अरे पर वो pollution है. ओजोन इज ट्राइंग टू नलीफाई द पोल्यूशन, तो उसको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गया. एक दूसरा रीज़न ये है कि हमारे लंग्स में एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस कैपेसिटी है ही नहीं. अच्छा. क्योंकि नेचुरली हम, गॉड हैज़ मेड अस आवर लंग्स
विदाउट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं तो हम कोई भी एनवायरनमेंट में रहेंगे, हम खांसते रहेंगे। पोल्यूशन से बचने के लिए या ओजोन से बदले कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस नहीं है, इसलिए बोलते हैं ओजोन डायरेक्टली इनहेल नहीं करना है। सो एक रीज़न, हाँ, ओजोन जैसे मशीन से निकलता है, हमको ऐसे सूंघना नहीं है क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर लंग्स बिकॉज यू डोंट हैव एंटीऑक्सीडेंट्स। बट हम जितने भी दूसरे वेज है उससे जब लेते हैं तो वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कंप्लीटली सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट है। सो जब हम ओजोन देते हैं तो 99.5% to 95% इज ऑक्सीजन, 0.5 to 5% is ozone. So it's a combination of oxygen and ozone together. So ये completely अलग है जो environmental ozone या smog indicator, ये सब environment की बात है। हम जो use करते हैं ये pure medical treatment there are है। clinical trials, there are PubMed studies of ozone, and it's not new. I think ये new इसलिए हुआ है because after corona, you know, लोगों ने supplements खा लिए, सब कुछ कर लिया। How can I get back to normal? You know, where I was. And everybody has vaccination injury. आपके CRP markers बहुत देर तक high हैं. So people are looking for कि ठीक है यार, मैं जो कोरोना से पहले कर रहा था, अब I want to add something. So that is where, out of all the alternative therapy, I believe a lot in ozone because I have seen and experienced firsthand what it can do. So अगर last question, Dr. Mali, ozone के clinics हर शहर में हैं? Yes. So we have trained more than like Bisleri Charitable Trust and Ozone Forum of India. So we are like one entity only. We have trained more than 3,500 doctors across India. तो अगर आप देखेंगे तो spread of doctors are quite well. हाँ, वेस्टर्न और साउथ में ज़्यादा है, थोड़ा दिल्ली में काफ़ी हद तक है, पर पंजाब जैसे हम धीरे धीरे पहुँचना चाह रहे हैं। और काफ़ी लाइक चंडीगढ़ में 2-3 है, डॉक्टर समीर जालंधर में है, काफ़ी है। सो काफ़ी सिटीज़ में है। अगर किसी को और देखना है तो हमारी एक वेबसाइट है ozonforumofindia.com, जिसमें एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन है, जिसमें हमने प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स लिस्ट रख दी है। सो आप स्टेट वाइज जाके प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स लिस्ट देख सकते हैं। Perfect. But just I'm very curious, एक ओजोन से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं, तो एक डॉक्टर क्लिनिक, एक डॉक्टर एट द एंड सबने पैसे कमाने हैं, तो एक डॉक्टर अपना प्रोफेशन छोड़ के ओजोन क्यों करेंगे? प्रोफेशन छोड़ने की बात कौन कर रहा है? हम तो ऐड करने हैं, उसके साइड बाय साइड कर लो, ठीक है। हम तो कोई कुछ किसी को कुछ छोड़ने को नहीं बोलते हैं, तो इट इज़ एन सपोर्टिव एडजुवेंट ट्रीटमेंट। ओके, हाँ, इट रिक्वायर्स पैशन फ्रॉम डॉक्टर कि हम पेशेंट को कितना अच्छा देखना चाहते हैं। तो जितने लोग पैशनेट है वो तो कर ही रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। How sweet of doctors who are doing this. Yeah, true. Perfect. True. Okay. Thank you, Dr. Thank you. Shah. Thank you so much. And guys, we will put contact details and everything if you want to go to this charitable organization and get your ozone done. And Dr. Millie she had her clinics, but she's now at a position, I think. Yeah, I'm a president of Ozone Forum of India. So the main work which I do is train doctors and create more clinics across. So they are not my clinics or OFI's Bisleri Charitable Trust clinics, but I consider them as offshoots of Ozone Forum of India because they carry the message ahead. Yeah, I get that. Perfect. Thank you, Dr. Shah. Thank you so much for being here and for your noble work. Thank you. Guys, My Duty Talks के थ्रू मैं वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स दैट आर वर्किंग टू ट्रेन अदर डॉक्टर्स
DNA, रिसर्च साइंटिस्ट, सबको आपके सामने लाना चाहती हूँ। मायूडी टॉक्स को सिर्फ आप ही हिट कर सकते हैं इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर दिस इज़ अ हिट चैनल then I'm definitely bringing world's top-notch doctors in front of you to give you right medical advice. अगर आपको लगता है ये एपिसोड किसी को बेनिफिट कर सकता है, I've done my part. Now it's your time to do your part. प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कीजिए और उनको हेल्प कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो।